Hello guys, welcome back to my YouTube channel Teachers Junction. So today's topic is psychology of growth and development, and this is the first part of growth and development. I will tell you about the meaning of the growth and development, principle and aspects of the development, education implications of growth and development, key principles, key education implications, and the factors, and in the end, factors affecting growth and development. So this is the very important, very basic and interesting chapter of the psychology in B.Ed. So let's start. Please like and subscribe my channel to get more interesting videos. Okay, so let's start with the concept of the growth first. Listen carefully. uh, what is growth? What it means literally? It means it is a physical increase in some quantity over time. What is growth? It is a physical increase. It is a physiological changes occur in body, which include the increase in height, weight, body proportions, and the general physical appearances. Okay, so it includes physiological changes. It means the growth, it involves all those structural and the physiological changes that takes place within the humans during the process of the maturation. फॉर एग्जाम्पल जब बच्चा हम कहते हैं बच्चे की ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स हिज वेट इज इंक्रीजिंग, हिज हाइट and the different organs in the child is increasing. ठीक है, but it does not continue throughout the life. It has some limited time कि growth जो है एक समय तक ही होती है. ठीक है, ये throughout life नहीं चलती है. And as I told you, it is a structural and physiological changes. It is the part of the development. But what is development? uh, Development is the overall changes in the individual. What is the overall changes? What does it mean? That means both the growth, that means physical, mental, emotional, social. ठीक है, all types, these type of developments come in the category of development. It is the overall जो changes बच्चे के अंदर हो रहे हैं, that is development. So growth is the part of development. Okay, uh, it is the qualitative changes in the human as a whole. It is a continuous process. Why? Because it is a continuous process. It continues throughout the life. ठीक है, it is a continuous process through which the physical, emotional, intellectual, all these changes occur. So, and it is more wider and it is a more comprehensive term than the growth, whereas it is just one of the part of the developmental process. And it is also possible without growth. So development, listen carefully, development is also possible without growth. Growth के बिना development हो सकती है. ठीक है, so okay, so growth, it is referred to describe the changes in a particular aspects of the body and the behavior of the organism. आप यहाँ पे देखोगे कि इट अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो ग्रोथ, ठीक है, उससे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से हमारे अंदर जो प्रोसेस है वो चलता है एंड ग्रोथ होती है. वेयरएज डेवलपमेंट जो होती है, इट अकर्स ड्यू टू द बोथ मैचुरेशन एंड द इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट. इसमें एनवायरनमेंट का भी रोल प्ले होता है. ग्रोथ में हेरिडेटरी हो सकता है, ठीक है, वेयरएज एनवायरनमेंट में जो है, एनवायरनमेंट जो है वो रोल प्ले करता है. ठीक है, क्योंकि जो बंदे का जो है इमोशनल, सोशल, जो मेंटल, उसका जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. The important point is the changes which are produced by the growth are the subjects of the measurement. Okay, we can measure the changes that are produced by the growth. For example, height, which can be measured. ठीक है, आपकी height हम measure कर सकते हैं. Weight can be measured, your weight can be measured. Okay, but in development,
we cannot measure those things. They are, we cannot measure them directly, ठीक है. So it brings the qualitative changes which are difficult to measure directly. For example, your intelligence, it cannot be measured. How will you measure? Will you measure it by scale or some other instrument? ठीक है. So it cannot be measured, but we have a observation. We can measure it through keen observation of the behavior in different situations, so they can be assessed. ठीक है. ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम आपकी इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं आपका. ठीक है. सो इट ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर मैचुरेशन. जब एक मैच्योरिटी आ जाती है बॉडी में तो ग्रोथ रुक जाती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल 18 की एज तक कहते हैं हाइट रुक जाती है, प्यूबर्टी अटेन हो जाती है. सो उसके बाद तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं चलता ना, तो ग्रोथ हो चुकी है. ठीक है. डेवलपमेंट जो है ये प्रोग्रेसिव है नेचर में. ठीक है. ये इट कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल विदाउट द ग्रोथ. डेवलपमेंट जो है ग्रोथ के बिना पॉसिबल है, और ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल किसी की हाइट कम है, ठीक है, या फिर किसी की हाइट कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी. ठीक है. एक हद तक ग्रोथ उसकी नहीं हुई है पर डेवलपमेंट तो है. ठीक है. उसकी एज के हिसाब से जो है उसकी हाइट उतनी नहीं है माना, पर उसकी डेवलपमेंट वो तो कंटिन्यू है ना. सो डेवलपमेंट उसकी हो रही है. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. सो ये था आपके डिफरेंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. बहुत ही सिंपल है, आप एक बार इसमें गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट कम टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? Development is a continuous process. It involves change. First of all, it involves change. ठीक है. When there is a change, development is occurring. Both all types, physically, mental, ठीक है, cognitive development, social, emotional. So ये इसके काफ़ी. It involves change. Development, it is a holistic process. It is a holistic process. Why it is called a holistic process? It means it contains everything. ये भी जितने भी हैं आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारे जो ये डोमेन्स हैं, ये दे अफेक्ट ईच अदर एंड दे ऑल कंबाइन टू मेक द ओवरऑल डेवलपमेंट. इन्हीं को हम बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट. ठीक है. ओवरऑल इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. ठीक है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स टिल डेथ. ओके. द स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज, बट इट डजंट स्टॉप. इट डजंट अकर इन स्टेजेस. इट इज़ कॉन्टिन्यूस. सो ये 3 पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न इन एन ऑर्डरली मैनर. इट इज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. ठीक है. ऐसा नहीं कि ये एक ऑर्डरली प्रोसेस जो है फॉलो करता है. पहले बच्चा जो है शेप सीखता है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल. उसके बाद वो धीरे धीरे भाई मेंसुरेशन पे जाता है. फिर वो एरिया निकालेगा, फिर वो क्यूबॉइड बनाएगा, क्यूब. ठीक है. क्यूब बनाएगा. तो एक प्रोसेस फॉलो करेगा, एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा. उसका ऑर्डर, ठीक है, सिक्वेंशियल होगा. ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्ट तुम क्यूब बता दोगे कि ये क्यूब है. वो कैसे अकोमोडेट करेगा कि ये क्यूब है? उसने स्क्वायर उसको पता नहीं है. ठीक है. सो ये इतना आसान नहीं है. सो इट फॉलोज अ डायरेक्शन एंड यूनिफॉर्म पैटर्न. नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर ऑलवेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे. ठीक है. कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो होंगे वो 100% सेम नहीं होंगे. उनमें कोई ना कोई फैक्टर जो है हमेशा वेरी करेगा. ठीक है. जैसे कि जो डेवलपमेंट के जो डोमेन्स हैं आपके, वो कौन कौन से हैं जो मैंने बताए थे? ये हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, इमोशनल, मॉरलिटी. ठीक है. एंड लैंग्वेज. ये सारे डोमेन्स हैं आपके डेवलपमेंट के. और ये बच्चे जो हैं सब में, इन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे. कोई किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, किसी का फिजिकल अच्छा होगा, किसी का सोशल अच्छा होगा. ठीक है. कोई इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई कम होगा. ठीक है. सो कोई भी दो बच्चे जो हैं सेम नहीं होंगे. ठीक है. Some children are more intelligent, some are dull.
ठीक है, दे मे बी फिजिकली सेम, अगर वो फिजिकली सेम है, बट उनकी जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, दूसरे डोमेन्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं, पर वो 100% सेम नहीं होंगे। इसी का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपको क्लासेस के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लास भरी होती है हमारी। सो डेवलपमेंट इट डिपेंड्स ऑन द मैचुरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन द मैचुरेशन एंड लर्निंग, काफ़ी इस पे डिपेंड करती है। इसका मैं बता देती हूँ कैसे। वाई, बिकॉज मैचुरेशन जो है ये एक इट रेफर्स टू द सिक्वेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, and all that biological changes, it occurs in sequential order and give children new abilities. Okay, so the the changes in the brain and nervous system, which account largely for maturation, and these changes in the brain and nervous system, they count largely for the maturation. And the child's environment and the learning that occurs as a result of the child's experiences largely they determine whether the child will reach the optimal development or not. An enriched environment and the various experiences, they help the child to develop his or her potential. उनकी potential में को डेवलप करने में बच्चे का एक एनवायरनमेंट जो है, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, इट कैन बी इजीली प्रिडिक्टेड। ओके, वैसे तो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट जो है जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, बट हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कोई हेरिडिटी के थ्रू, जैसे कोई उसके फादर जो हैं इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, काफ़ी जीनियस ही हैं, ठीक है, तो बच्चा भी हो सकता है कि कहते हैं ना बेटा जो है बाप पे गया है, तो वो काफ़ी हद तक वो भी जीनियस पैदा हो सकता है। तो इट इज़ प्रिडिक्टेबल। ठीक है, early development is more critical than the later development. It is the important point. एक्चुअली यहाँ पे मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ अर्ली एक्सपीरियंस एंड लेटर एक्सपीरियंस। सो सम साइकोलॉजिस्ट लाइक जो आपके जो फ्रॉड थे, ठीक है, इन्होंने कहा कि दैट अर्ली एक्सपीरियंसेस आर मोर इम्पॉर्टेंट। दैट मीन्स अर्ली एक्सपीरियंसेस, दैट मीन्स 0 to कहाँ है अर्ली एक्सपीरियंसेस, कि अर्ली एक्सपीरियंसेस early experiences are more important, that occurs between 0 to 5 years of age, and they are more important as this affects the later development, जो हमारी जो बाद में जो डेवलपमेंट होने वाली है, ठीक है, उस पे काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग के जो बच्चे के जो साल होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पे ध्यान दिया तो उसकी बाद की जो डेवलपमेंट है उसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, या उस पे जो शुरुआती के जो दिन हैं वो बाद में असर करेंगे। बट सम साइकोलॉजिस्ट जैसे कि जो एरिक्सन हो गए, ये हम पढ़ेंगे, एरिक्सन की थ्योरी भी है। ठीक है, एरिक्सन कहते हैं कि दैट लेटर डेवलपमेंट दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। वाई दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो अर्ली डेवलपमेंट जो आपके जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं दे प्ले नो रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो शुरुआती में जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करते हैं कि भाई ठीक है जो हुआ उसके साथ हुआ, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, बट बाद में तो वो इतना मैच्योर हो जाता है ना, वो चीज़ों को समझ सकता है और वो उसके हाथ में होता है कि वो चीज़ों को चेंज कर पाए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर पाए, कुछ चीज़ें चेंज कर पाए। तो इस पे अभी भी डिबेट चल रही है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस ज़्यादा रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट पे कि बाद के डेवलपमेंट जो हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इनमें हमेशा ये डिबेट चल रही है अभी भी। So the culture and society affects development. Obviously, the culture and society they affect development. Okay. Okay. Development has a potential hazards. That means, uh, and what are the hazards? Hazards may be of physical, environmental or psychological type के हो सकते हैं. They are originated from the environment in which the child grows.
ठीक है, और ड्यू टू द हेरिडेटरी फैक्टर्स से भी हो सकते हैं. दे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिजिकल एज वेल एज सोशियो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा जो है किसी बच्चे को, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को हकलाने की आदत है, ठीक है, और पेरेंट्स जो है उस बच्चे को नेगलेक्ट करते हैं, तो उसकी ये प्रॉब्लम जो है कंटिन्यू रह सकती है. ठीक है, आगे तक रह सकती है. सो इट हैज़ अ पोटेंशियल हैज़ार्ड्स. नेक्स्ट इज एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. 4 एस्पेक्ट्स मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. दे आर 4 एस्पेक्ट: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट. अरे कौन आ गया? ओके, सो एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ. ओके, ओके, now come to the aspects of development. So there are 4 aspects of development. मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ ये. They are physical development, cognitive development, social development and emotional development. Okay, uh, let's move further. Educational implications, very important. So educational implications क्या हैं growth and development की? वो ये है कि okay, now come to the educational implications of principles of growth and development. In this, a healthy child shows good academic result. ठीक है, it is true. And teachers must have knowledge to deal in events. They teachers को मालूम होना चाहिए कि बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ और जो टीनेज बच्चे होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनके साथ कैसे बात करनी है. तो उनको डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हैं वो अडेप्ट करने पड़ेंगे बच्चों से बात करने के लिए, क्योंकि इन सब में क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, हर बच्चे में वेरी करते हैं. सो स्टूडेंट्स शुड नॉट बी टॉट विद द सेम मेथड. ऑब्वियसली उनको एक मेथड के साथ हम नहीं पढ़ा सकते, अदरवाइज दे विल गेट बोर्ड. एंड teacher must adopt the modern and effective methods of instructions. ठीक है, day to day life. So students should be grouped on the basis of their level of cognition and intelligence. So they should be grouped on the basis of these level. uh, Teachers should stress on the development of the creative thinking. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई बच्चा अगर क्रिएटिव है, ठीक है, इनोवेटिव है, तो उसको उस पर जो है ध्यान देना चाहिए टीचर को. उस पर उसकी डेवलपमेंट जो है उसको और एनहेंस वो कर पाए ताकि. ठीक है. Emotional development is useful for the balanced personality, and obviously this is the very important aspects of development कि emotionally development आजकल ये भी काफ़ी डिसबैलेंस हो रहा है लोगों का. So it is other important implication कि it is useful for the balanced personality, and the social and cultural activities helps in social development. डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ. एंड ऑल द जो एनवायरनमेंट है हमारा वो हमें हेल्प करता है. ठीक है, हमें सोशली डेवलप होने में. ठीक है. इंटरपर्सनल रिलेशंस दे आर हेल्पफुल फॉर द सोशल डेवलपमेंट. सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि इंटरपर्सनल होता है, एक इंट्रापर्सनल होता है, यहाँ पे है इंटरपर्सनल. दैट मीन्स इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों को अच्छे से समझना. दूसरों को अच्छे से समझना, जो हम दूसरों को अच्छे से समझेंगे तो उससे हमारा जो है सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा. और एक होता है इंट्रापर्सनल. ठीक है, इंटरपर्सनल का मतलब होता है खुद को समझना. ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को अच्छे से जानना. अब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, दैट इज इंट्रापर्सनल. ठीक है, एंड इंटरपर्सनल इज दूसरों को समझना. तो यहाँ पे जो है ये
implications हैं. Next are the factors affecting growth and development. So there are few factors: hereditary factors, environmental factors, home factors, cultural factor, and socio-economic status, normative influences, and education and training factors. ठीक है, so ये हमारी growth and development को अभी factors कैसे affect करते हैं ये हम one by one देखेंगे. So let's start. फर्स्ट इज हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अब ये हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं. सो पहले तो मैं बताना चाहूँगी हेरिडिटरी होता क्या है. सो हेरिडिटरी दैट मीन्स दे आर द करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड थ्रू द जीन्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स. ठीक है, थ्रू जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है, या फिर जनरेशन टू जनरेशन जो ये ट्रांसफर होते हैं. अब ये जो है दो तरह से हो सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स. कैसे? जो एक तो वो जो विजिबल हो, एक नॉन विजिबल हो. अब जैसे कि जो हमारा आई कलर हो गया, स्किन हो गया, हाइट हो गया, विच कैन बी सीन, ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हम देख पाते हैं हेरिडिटरी. ठीक है, कि पापा का कलर, अगर आँखों का कलर ब्लू है तो बेबी का भी ब्लू है, तो हम वो विजिबल है कि हाँ ये पापा से आया है. ठीक है, इसमें अब एक और चीज़ है जो हम नहीं देख पाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, शाइनेस, ये सब क्या है, ये भी हेरिडिटरी के थ्रू आते हैं. जैसे कि सपोज़ कोई पेरेंट जो है काफ़ी शाय है या काफ़ी काफ़ी इंटेलिजेंट है. ठीक है, और बच्चे में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ रखे हैं, तो वो विजिबल नहीं है. ठीक है, हमें उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या कोई काफ़ी टाइम बाद हमें मालूम चलेगा कि हाँ ये तो उसके पेरेंट्स से आया है. ठीक है, वो इतना ईजिली हम उसको डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे. सो ये हो गए हमारे हेरिडिटरी फैक्टर्स. ठीक, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, अब हेरिडिटरी जो है ये फिक्स्ड होती है, ये प्रिडिक्टेबल होती है, इससे काफ़ी हद तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जबकि जो हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, अब एनवायरमेंट क्या है, जो भी हेरिडिटरी नहीं है वो सारा एनवायरमेंट है. और एनवायरमेंट के अंदर आता है हमारा स्कूल, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, ये सारे हमारे एनवायरमेंट के अंदर आता है. और एनवायरमेंट इज़ एवरीथिंग विच इज़ नॉट हेरिडिटरी. ओके, एंड ये डायनामिक है, ये जो है परमानेंट नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है. एनवायरमेंट में वही चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, ये प्रिडिक्टेबल तो नहीं है, बट हेरिडिटरी प्रिडिक्टेबल है. ठीक है, ओके. तो हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट दे बोथ इन्फ्लुएंस वन अनदर, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. और ठीक है, और अभी तक इस पर डिबेट चल रही है कि किसका कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा रहा है डेवलपमेंट में, हेरिडिटरी का डेवलपमेंट, इसका जो है इन्फ्लुएंस, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या फिर एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. तो अभी भी इस पे जो है डिबेट जो है चल रही है. ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं दैट हेरिडिटरी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट सम अदर से दैट एनवायरनमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो स्टिल डिबेट इज़ गोइंग ऑन. Next is your just a second, home environment. Okay, so environment, third factor is home environment. It is very important because बच्चे के लिए होम एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है बच्चे को it builds self concept and prepare a child to face the external world. जो फैमिली है वही तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एनवायरनमेंट में, क्योंकि बच्चा जो है फर्स्ट नॉलेज जो है वो अपने पेरेंट्स से ही लेता है, अपने फैमिली मेम्बर से ही लेता है. ठीक है, एंड स्टार्टिंग के दिनों में जो बच्चे का जो बिहेवियर है वो कैसे मॉड्यूलेट होता है, होम एनवायरनमेंट से ही मॉड्यूलेट होता है. और फैमिली जो है, मदर, पेरेंट्स, वो जो पेरेंट्स हैं उसके, वो सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस डालते हैं बच्चे की डेवलपमेंट पे. ओके, ओके. सो अगर बच्चे को केयर मिलेगी, सपोर्टिव होंगे पेरेंट्स, ठीक है, वार्म अच्छा इन्वायरमेंट होगा, तो बच्चे की डेवलपमेंट उसी तरह से होगी. बट अगर पेरेंट्स अगर भाई वैसे होंगे, अनसपोर्टिव होंगे, और अगर घर के अंदर बहुत ही स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहेगा, या लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे, ब्रोकन फैमिली स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो रहेगा, अनकेयरिंग पेरेंट्स रहेंगे, तो बच्चा जो है भाई वो एक मैल एडजस्टेड पर्सनैलिटी बन जाएगा. ठीक है,
नेक्स्ट आर द कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे इसमें मैं बता देती हूँ। कल्चरल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, ये एक कल्चरल, दैट मीन्स एक इट रेफर्स, कल्चर इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ बिलीव्स। एक सिस्टम है हमारा बिलीव्स का, एटीट्यूड्स का, वैल्यूज़ का, दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हम इसको थोप देते हैं दूसरी जनरेशन में। ओके, सो ये जो है काफ़ी हद तक बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसको शेप करने में असर डालता है कल्चर भी, ठीक है। एंड the development of the child is influenced by the family as well as by the society, ठीक है। वो जो है बच्चा बचपन से ही उसकी कंडीशनिंग होती जाती है, पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, नेबरहुड के थ्रू, ठीक है। फिर वो पहले बच्चा घर से सीखता है, कंडीशनिंग उसकी घर से होती है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर स्कूल में उसे सिखाया जाता है, फिर सोसाइटी में। सो ही लर्न्स द हैबिट्स, बिलीव्स, एटीट्यूड, स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ द जजमेंट थ्रू द सोशलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ पे उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, एंड द सोशलाइजेशन प्रोसेस है यहाँ पे ऑफ द चाइल्ड दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द कल्चर। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे भी है एक कल्चरल फैक्टर्स, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है बच्चे का, इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द कल्चर, कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के हिसाब से ही जो है उसका सोशलाइजेशन वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार आप प्लीज़ इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, दैट इज SES। व्हाट इज़ दिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेवलपमेंट में। कैसे? क्योंकि भाई पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, वो कितना कमाते हैं, ये सब के सब जो हैं बच्चे की जो डेवलपमेंट है उस पर असर डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर द चिल्ड्रन ऑफ द लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो वहाँ के बच्चे होंगे जिनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं होगा, सो दे मे बी मेल नरिश्ड, दे विल सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ द नॉलेज इन मैनी एस्पेक्ट्स, एंड उनकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट है मे गेट हैम्पर्ड, ठीक है। जबकि जो पेरेंटिंग है हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, ये एक स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपको उससे बता रही हूँ, ये मेरा कोई अपना नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि जो हाई सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस फैमिलीज़ होती हैं, भाई ऑब्वियसली उनका रहन सहन वगैरह वो सब मैटर करेगा, बच्चे पे असर डालेगा, और जो उसमें बच्चे को बेटर सोशल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, दे विल बी नर्चर्ड विद बेटर न्यूट्रिशन, एंड दे विल गेट ऑटोमेटिकली दे विल गेट द गुड मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल, एंड द ठीक है, और एज कम्पेयर टू द लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के। सो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस, व्हाट आर द नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस? these influences they may be biological and environmental, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, normative influences occur in a similar way for the majority of the people in a particular group. These influences may be biological or environmental, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजिकल इवेंट्स जैसे कि सेक्सुअल मैच्योरिटी और डिटोरेशन जो होती है बुढ़ापे में, ये इसका एग्जांपल है। एनवायरमेंटल इवेंट्स लाइक एंटरिंग द स्कूल एट अबाउट 6 years of age, parenthood, etc. have the same influences on the individuals, and most of the people of the same age at same place and time and generation have common biological and environmental influences, जैसे कि फ्लड्स, फेमाइंस और दूसरे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उनके, ठीक है। सो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये थे दो, इतना कुछ है नहीं इसमें। एजुकेशन ट्रेनिंग में बस यही है कि each child is equipped with the certain abilities which need to be nurtured through the proper education and training, ठीक है। So the adequate education and training, they have the influence of the human development. So that's all about the growth and development. We will meet you soon. um, till then, goodbye, take care.
Thank you for watching video, guys. Bye.